Hello everyone, my name is Rasika and I welcome you all to Edisulis. So students, today I will be starting part 2 of tenses where I will be covering perfect tenses and perfect continuous tenses. I hope you all have watched the part 1. Okay, so let's start with our today's session. But before starting, I request you all please subscribe our channel and hit the bell icon so that you don't miss out any of the notifications of important videos. So let's start. So students, this is the chart which I have shared in previous class also, in which we will have covered simple tenses and continuous tenses. In today's session, we will be covering perfect and perfect continuous tenses. Okay. So let's see the rules of perfect tenses first. When you see this word perfect, it means it is followed by has and have plus third form of verb. For example, he has driven a car. Okay, so this is the form of present perfect tense. In past perfect, we write had plus third form of verb. He had driven a car. In future perfect, we write we will have plus third form of verb. He will have driven a car. In present perfect continuous tenses, it is formed by has or have been plus verb plus ing. For example, he has been driving a car since 2015. Past perfect continuous tenses are formed by had been plus verb ing. He had been driving a car when he joined college. Future perfect tenses are formed by will have been plus verb ing form. He will have been driving a car. And when to use present perfect, past perfect, or future perfect, and when to use their perfect continuous tenses, these rules I'll be covering in today's session. Okay, so let's start. So first we will start with the present perfect tense. So present perfect tense are used to indicate completed activities in immediate past. It shows those activities which have been completed in recent past but their effect can be felt in present. Okay. So see the examples. I have just completed my work. So this work has already been completed. Okay. And the use of this word just, it shows that we have to write present perfect tense. So I have just completed my work. The flight has already landed. So the use of this word already, it shows that the flight, that this activity has been completed in the recent past. So this flight has already landed. I have recently visited my uncle's farmhouse. ओके सो मतलब मैंने अपने अंकल के फार्म हाउस अभी अभी हाल ही में विजिट किया. आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई वर्क. मैंने जस्ट अभी अभी अपना वर्क कंप्लीट किया. द फ्लाइट हैज ऑलरेडी लैंडेड. फ्लाइट लैंड कर चुकी है बट अभी अभी लैंड की है. सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या शो करता है? वो सारी एक्टिविटीज जो कि कंप्लीट हो गई है बट वो रिसेंटली कंप्लीट हुई है और उनका इफेक्ट कैन बी फेल्ट इन द प्रेजेंट. तो फर्स्ट रूल इसका ये हो गया. सेकेंड रूल देखते हैं. To express past actions whose time is not definite. Actions तो past में ही हो रहे हैं बट कब हो रहे हैं that time is not certain. In that case we use present perfect tense. For example, have you ever been to London? क्या तुम कभी भी लंदन गए हो? Means it is asking in your whole life whether you have been to London or not. Okay, so have you ever? अभी टाइम इसमें कोई डेफिनेट टाइम नहीं दिया इसलिए इसमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ है. हैव यू एवर बीन टू लंदन इन इंटेरोगेटिव फॉर्म. नेक्स्ट, शी हैज नेवर बीन टू लंदन. वो कभी लंदन नहीं गई. नेवर, एवर, नेवर, जस्ट, रिसेंटली, ये सब कुछ कॉमन वर्ड्स है जिनके साथ आप परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. आई हैव रिटन 2 स्टोरीज सो फार. मैंने अभी तक 2 स्टोरीज लिखी हैं. सो दिस use of this word so far, it shows that action is completed but when the action was completed that time is not certain. So far अभी तक. क्या तुम कभी लंदन गई हो? मैं कभी लंदन नहीं गई हूं. ठीक है, तो इसमें कोई भी डेफिनेट टाइम शो नहीं हो रहा है. आई हैव सीन दिस मूवी 5 times. सीन दिस मूवी 5 times. मैंने ये मूवी 5 बार देखी है. ठीक है, मैं ये मूवी 5 बार देखती हूं तो आई सी दिस मूवी 5 times. तो वो इनकरेक्ट हुआ, थोड़ा वीक सा सेंटेंस हुआ. आप कैसे बोलोगे मैंने ये मूवी 2 बार देखी है?
तो इसमें जैसे आप हिंदी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि कौन सा टेंस यूज करना है। सो मैंने ये मूवी 5 बार देखी है, 5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। So I have seen this movie 5 times. Again, the use of present perfect tense is made here. Next, to denote an action in an ongoing period of time. कोई ऐसा एक्शन जो कि अभी इस टाइम पीरियड पे चल रहा है, जो टाइम पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ है, कंटिन्यूअस में है। जैसे टुडे, टुडे मतलब आज अभी चल रहा है, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर। ओके, सो दिस वीक मीन्स दिस वीक इज गोइंग ऑन, दिस टाइम पीरियड इज स्टिल नॉट कंप्लीटेड। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग टुडे। मैंने सुबह से, मैंने आज कुछ भी नहीं खाया, मैंने आज कुछ भी नहीं खाया। तो ये टुडे जो है टाइम पीरियड, ये अभी भी चल रहा है, तो हैव नॉट ईटन आया। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने यूज किया। दे हैव मैरिड दिस मंथ, उन्होंने इस महीने शादी करी है, अभी ये महीना खत्म नहीं हुआ है, ये मंथ इज स्टिल गोइंग ऑन। ये हम शो कर रहे हैं कि उन्होंने शादी कर ली है, बट इस महीने शादी करी है। आई हैव विजिटेड टेम्पल 4 times दिस वीक, मैंने इस हफ्ते 4 बार टेम्पल विजिट किया। दिस वीक इज स्टिल गोइंग ऑन, इट्स स्टिल नॉट फिनिश्ड। तो इस वीक में मैंने टेम्पल विजिट किया। सो आई हैव विजिटेड टेम्पल 4 times दिस वीक। ओके, नेक्स्ट, दे आर यूज्ड विद सिंस एंड फॉर फ्रेजेस। तो सिंस और फॉर फ्रेजेस के साथ आप देखोगे परफेक्ट टेंसेस का यूज किया जाता है। अब वो प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट स्पीकर वांट्स टू कन्वे। ओके, बट जहां आपको सिंस और फॉर दिखेगा तो उनके साथ मेनली परफेक्ट टेंस का फॉर्म यूज होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट मेट हिम फॉर ईयर्स, मैं उससे सालों से नहीं मिली हूं। आई हैव नॉट मेट हिम फॉर ईयर्स। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। शी हैज लिव्ड इन लंडन फॉर 3 years, वो लंदन में 3 साल रही है। अब इसमें जो लिव और वर्क, ये दो ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें अगर आप परफेक्ट यूज करो या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करो, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स सेम ही मीनिंग कन्वे करते हैं। शी हैज लिव्ड इन लंडन फॉर 3 years, सो इट इंप्लाइज मे बी शी इज स्टिल लिविंग इन लंडन। वो ये अलग बात है कि उसको रहते हुए लंदन में 3 साल हो गए, और हम ये बोले शी हैज बीन लिविंग इन लंदन फॉर 3 years, तब तो ये क्लियर हो जाएगा कि शी इज स्टिल लिविंग इन लंदन। बट दिस सेंटेंस शी हैज लिव्ड इन लंदन फॉर 3 years, इसके दो मीनिंग्स निकल कर आते हैं। एक तो ये बोलना चाह रहा है वो पास्ट में लंदन में 3 साल रही है। फॉर एग्जाम्पल, वो 3 years लंदन में रही, 2 years स्पेन में रही। तो आप बोलना चाहते हो, और अभी वो सपोज करेंटली कनाडा में है, तो अगर आप ये बोलना चाहते हो कि 3 साल वो लंदन में रही है, तो शी हैज लिव्ड इन लंदन, तो उस सेंस में भी करेक्ट है। आप बोलना चाह रहे हो लंदन में रहते हुए उसको 3 साल हो गए, इसका मतलब वो अभी भी लंदन में रह रही है, तो उस केस में ज्यादा अप्रोप्रिएट टेंस होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो काम चल रहा है, पहले से चल रहा है। बट उसमें आप लिव और वर्क में आप परफेक्ट टेंस भी जस्ट नॉर्मली यूज कर सकते हो टू कन्वे दैट समथिंग इज स्टिल गोइंग ऑन, स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन। अदरवाइज ज्यादातर जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी शो नहीं करते जो कि गोइंग ऑन है, वो हमेशा ही क्या है, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीटेड एक्शन शो करते हैं। ओके, बट जस्ट वर्ब्स लिव एंड वर्क आर एक्सेप्शन। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने टेंस पे, पास्ट परफेक्ट टेंस। सो इट डिस्क्राइब्स अ कंप्लीटेड एक्टिविटी इन द पास्ट। अब परफेक्ट है तो एक्टिविटी तो कंप्लीटेड होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसको कैसे यूज करते हैं, इट इज यूज टू एम्फसाइज दैट एन एक्शन वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस। सो पास्ट परफेक्ट टेंसेस मोस्टली आप यूज करते हो, अगर आप बड़े सेंटेंसेस देखोगे तो उसमें दो एक्शन शो होंगे। तो उसमें जो फर्स्ट एक्शन है जो कि कंप्लीटेड पहले हुआ था, फर्स्ट एक्शन जो पहले कंप्लीट हुआ था, उसमें आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हो, और जो सेकेंड एक्शन होता है जो उसके बाद कंप्लीट हुआ था, उसमें आप सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है स्टूडेंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर। सो पास्ट परफेक्ट टेंस ज्यादातर यूज होता है व्हेन देयर आर टू एक्शंस, व्हेन देयर आर टू एक्शंस दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड द एक्शन दैट टुक प्लेस बिफोर
we use past perfect with that action, and the action that followed the previous action that happened subsequently to it, we use simple past tense with that action. Check out these examples. The patient had died before the doctor arrived. इसका क्या मतलब हुआ? पेशेंट डॉक्टर के आने से पहले मर गया। तो पहले कौन सी एक्टिविटी हुई? पहले एक्टिविटी हुई कि पेशेंट डाइड, ठीक है ना, पहले पेशेंट मरा और फिर डॉक्टर आया। इस सेंटेंस से तो यही पता चल रहा है कि पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव। तो ये फर्स्ट एक्टिविटी है और डॉक्टर अराइव्ड इज योर सेकेंड एक्टिविटी। सो पहले कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट हुई? पेशेंट हैड डाइड की, इसलिए इसमें आपने देखा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ। एंड द सेकेंड एक्टिविटी दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट टुक प्लेस सब्सिक्वेंटली टू इट, ये बाद में हुई। तो इसमें आपने देखा सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ओके, इसमें हमने बिफोर द डॉक्टर हैड अराइव्ड नहीं लिखा। दो बार पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसे नहीं यूज करते। तो ये ज्यादातर यूज होता है जब कोई भी दो एक्शंस पास्ट में होते हैं, उसमें से जो पहले एक्शन कंप्लीट हो जाता है उसमें पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, जो बाद में होता है कंप्लीट उसमें सिंपल पास्ट यूज करते हैं। ओके, चेक द सेकेंड एग्जांपल। ही रीच्ड द शो आफ्टर इट हैड बिगन। अब वो शो बाद में पहुंचा उसके चालू होने के, शो चालू पहले हो गया और वो पहुंचा बाद में। तो इसमें पहली एक्टिविटी कौन सी हुई? शो बिगिन की, शो चालू पहले हुआ इसलिए हैड बिगन आया। ओके, पास्ट परफेक्ट, और वो पहुंचा बाद में तो सिंपल पास्ट आया, ही रीच्ड द शो आफ्टर इट हैड बिगन। ओके स्टूडेंट्स, सो गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट, ही रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। वो स्टेशन बाद में पहुंचा, ट्रेन के जाने के बाद पहुंचा, मतलब उसकी ट्रेन मिस हो गई। तो पहले कौन सी एक्टिविटी हुई? पहले ट्रेन गई, इसलिए ट्रेन हैड लेफ्ट। ओके, इसमें पास्ट परफेक्ट यूज हुआ। एंड ही रीच्ड द स्टेशन देयर आफ्टर, बाद में पहुंचा, इसलिए इस वर्ब के साथ आपका सिंपल पास्ट यूज हुआ। ओके, सो पास्ट परफेक्ट टेंस आई होप आपको क्लियर हो गया कहाँ यूज होता है। ये मोस्टली उन केसेस में यूज होता है जहां पर दो एक्टिविटीज शो होती है दैट वर कंप्लीटेड इन द पास्ट, but the activity that was completed before the other activity, that activity takes the past perfect form and the second activity takes the simple past tense form. Okay students, coming to our next tense which is future perfect tense. It denotes an action that will be completed by a certain time in future. फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या शो करता है? ये वो एक्शन शो करता है जो कि कंप्लीट हो जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। अभी कंप्लीट फ्यूचर की बात है तो कोई एक्शन कंप्लीट तो हुआ नहीं है, लेकिन वो फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस नॉवल। मतलब इस वीक के आखिरी तक मैं ये नॉवल खत्म कर दूंगी, पढ़ना खत्म कर दूंगी या लिखना खत्म कर दूंगी, जो भी है। द वर्ब इज नॉट मेंशन्ड हियर बट आई हैव कंप्लीटेड बस है। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीक, सो दिस इज शोइंग योर फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक मैं इस हफ्ते के लास्ट तक ये बुक नॉवल खत्म कर दूंगी। तो आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस नॉवल। सेकेंड एग्जाम्पल, रोबोट्स विल हैव रिप्लेस्ड ह्यूमंस बाय 2080। रोबोट्स ह्यूमंस को 2080 तक रिप्लेस कर देंगे, ये काम पूरा हो जाएगा इस समय तक। ओके, आप समझ रहे हो? इसको आप हिंदी में कन्वर्ट करो, जो काम पूरा हो जाएगा फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में उसके साथ हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। रोबोट्स विल हैव रिप्लेस्ड ह्यूमंस बाय 2080 तक रोबोट्स ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगे। आई विल हैव रीच्ड सिंगापुर बाय इवनिंग, मैं इवनिंग तक सिंगापुर पहुंच जाऊंगी। Okay, so it shows the action will be completed by a certain point in time. I will have reached Singapore by evening. ठीक है, नेक्स्ट टेंस पे आते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, so it is used for an action that began at some time in the past and is still continuing. सो ये कौन सा कब यूज करना है? जब कोई एक्टिविटी आपकी पास्ट में शुरू हुई और वो अभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, मतलब अभी भी वो एक्टिविटी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन हैज बीन लर्निंग गिटार सिंस लास्ट ईयर। तो वो पिछले साल से गिटार सीखता हुआ आ रहा है, मतलब पहले भी पिछले साल से सीख रहा है वो गिटार, है ना। सो हैज बीन लर्निंग मीन्स ये एक्टिविटी उसकी लर्निंग की पास्ट में चालू हुई एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। ऐसे केसेस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। सेकंड केस, सेकंड एग्जांपल, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग।
सुबह से बारिश हो रही है, बारिश सुबह से हो रही है, ठीक है। सो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये एक्टिविटी कॉन्टिन्यूअस में चलती आ रही है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 8 years, मैं 8 सालों से इंग्लिश पढ़ाती हुई आ रही हूँ, ठीक है ना। मतलब ये एक्टिविटी चालू हो गई थी 8 साल पहले और अभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। सो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 8 years। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। It is used for action that began before a certain point in the past and continued up to that time। ये वो एक्शन है जो कि एक पास्ट पॉइंट पे एक मतलब चालू हुआ था और फिर जैसे ये अभी टुडे है आपका, ये आपका पास्ट है और ये आपका फ्यूचर है। सो ये एक्टिविटी टुडे तक तो आई नहीं, एक्टिविटी पास्ट में चालू हुई थी, फिर वो कंटिन्यू रही और पास्ट में ही एक टाइम पीरियड पे खत्म हो गई। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हुआ था, यहाँ पे पास्ट में एक्टिविटी चालू हुई थी और फिर वो कंटिन्यू होकर टुडे पे आ गई, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था और ये आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे लिख दिया है मैंने कि समझ में आया आपको, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो एक्टिविटी पास्ट में चालू हुई फिर वो कंटिन्यू हुई कुछ पीरियड के लिए और पास्ट में ही खत्म हो गई, टुडे में प्रेजेंट में इसका आई नहीं, इंपैक्ट हुआ ही नहीं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई ओपनड द विंडो इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours। सो अगेन इसमें आप देख सकते हो दो एक्टिविटीज मैंने शो करी। जब मैंने विंडो खोली तो उस समय बारिश हो रही थी, 2 घंटे से बारिश चालू थी, तो ये रेनिंग वाली एक्टिविटी कंटिन्यूड फॉर्म में दिखा रहा है कि 2 घंटे से हो रही थी, लेकिन ये पास्ट में खत्म हो गई बारिश, अभी प्रेजेंट में तो नहीं हो रही। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखा था, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 8 years, तो वहां पे क्या देखा, वो एक्टिविटी पास्ट में चालू हुई और प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रही है। बट इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours, मतलब ये पास्ट में चालू होकर पास्ट में खत्म हो गई। अब अगेन इसमें आप देखो तो मैंने 2 सेंटेंसेस कंबाइन करे, 2 एक्टिविटीज है, एक आपका ओपन द डोर विंडो की एक्टिविटी है और एक रेनिंग की एक्टिविटी है। सो बारिश पहले से चल रही थी, मैंने विंडो खोली लेकिन बारिश क्या है, पहले से 2 घंटे से चल रही थी लगातार, तो ये एक्टिविटी पहले हुई और ये एक्टिविटी बाद में हुई। तो इसमें हमने देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना था, लेकिन वो एक्टिविटी उस समय भी चल रही थी, ठीक है। जब हमने सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस देखा था उसमें जो फर्स्ट एक्टिविटी थी वो खत्म हुई थी कि द पेशेंट हैड डाइड और फिर डॉक्टर अराइव हुआ था, तो उसमें एक एक्टिविटी खत्म हुई थी पास्ट में और फिर दूसरी एक्टिविटी चालू हुई थी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो स्टिल चलती रहेगी, सेकंड एक्टिविटी हो रही है, बट फर्स्ट एक्टिविटी भी चलती रहेगी सेकंड एक्टिविटी के साथ। तो सेकंड एक्टिविटी के साथ देखिए मैंने सिंपल पास्ट टेंस यूज किया है और फर्स्ट एक्टिविटी क्योंकि भले ही पहले स्टार्ट हुई इसलिए परफेक्ट फॉर्म यूज हुआ है, लेकिन वो कंटिन्यूअस में इसलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यूज हुआ है। ओके स्टूडेंट, सेकंड एग्जांपल देखिए, आई वाज एक्सॉस्टेड एज आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मैं बहुत ज्यादा टायर्ड थी क्योंकि मैं सुबह से काम कर रही थी। अब वो कौन सी सुबह की बात कर रहा है नहीं पता, 2 दिन पहले की भी बात हो सकती है, 10 दिन पहले की भी बात हो सकती है, बस हमें ये पता है कि ये पूरी जो बात हो रही है ये पास्ट टेंस में हो रही है। तो मैं सुबह से काम कर रही थी, ठीक है, तो ये पहली एक्टिविटी है जो मैं काम कर रही थी। अब काम करते करते ही तो टायर्ड होंगी, तो ये सेकंड एक्टिविटी एग्जॉस्टेड की। अब ये फर्स्ट एक्टिविटी है तो इसके साथ हैड का फॉर्म आया परफेक्ट, बट क्योंकि मैं काम करती जा रही थी, टायर्ड हो गई थी फिर भी, तो इसमें आपका हैड बीन वर्किंग, ठीक है, तो इसमें आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज किया। ओके स्टूडेंट, सो आई होप आपको ये रूल समझ में आ गई कि कहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज करना है, कहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करना है, कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करना है। ओके, नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दिस टेंस इज नॉट मोस्टली यूज्ड, ठीक है, रेयरली यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। अभी जो सिर्फ नॉर्मली फ्यूचर परफेक्ट टेंस था उसमें हमने क्या देखा था, अगर हम बात करें ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, तो हमने देखी थी एक एक्टिविटी फ्यूचर में क्या है, कंप्लीट हो जाएगी कि आई विल हैव रीच्ड सिंगापुर बाय इवनिंग, मैं सिंगापुर पहुंच जाऊंगी, वो एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। बट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है कि वो एक्टिविटी फ्यूचर में कंटिन्यू होती रहेगी, खत्म नहीं होगी, इसलिए कॉन्टिन्यूअस टेंस है।
So by next year, I will have been teaching English for 9 years. अगले साल तक मुझे इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते 9 साल हो जाएंगे. ठीक है, तो ये एक्टिविटी चालू पहले हो गई थी, बट इसको ये अभी भी कंटिन्यू रहेगी. आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 9 years. आई विल हैव बीन वर्किंग इन द सेम कंपनी बाय नेक्स्ट अप्रैल. मैं अगले अप्रैल तक भी इसी सेम कंपनी में काम करती रहूंगी. जब ऐसे बोलते हैं ना, मैं अगले साल भी इसी ऑफिस में काम करती रहूंगी. सो आई विल हैव बीन वर्किंग इन द सेम कंपनी बाय नेक्स्ट ईयर. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे टेंसेस के रूल्स क्लियर हो गए. फिर से वीडियो को वापस से देखिएगा जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए. फिर भी कुछ रह जाता है, सो आस्क मी इन द डाउट सेशन. सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा. आपको परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस एकदम क्लियर हो गए होंगे. अच्छा लगा हो सेशन तो गिव अ थम्स अप, लाइक करिए, एंड ऑल्सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, because when you subscribe it motivates us to keep making such free educational videos for you all. So see you in the next session. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. Thank you and happy learning.